Now, today we are going to start with chapter number 2, How Do Animals Survive? In this chapter, we will learn about some terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal, aerial, adaptation on the basis of food and adaptation for protection. ठीक है, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर पे रहते हैं, एर्बोरियल जो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं, और एम्फीबियंस ये भी कहाँ रहते हैं, वाटर पे रहते हैं, और कुछ एरियल जो हवा में उड़ते हैं. ठीक है, हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे. Now first, start with introduction. Animals are found everywhere on the earth. The natural home of animal is called habitat. For example, the habitat of polar bear is icy, cold Arctic region. Camels live in hot desert. Some fish such as crab live in fresh water, with others such as salmon spend a part of their lives in salt water and a part in fresh water. देखो आपको एनिमल्स हर जगह मिलेंगे और जहाँ पे जो उनका नेचुरल होम होता है उसको हम उसको हैबिटेट कहते हैं. जैसे पोलर बियर आपको आइसी पोलर रीजन आर्टिक रीजन में मिलता है. ठीक है, अगर हम बात करें कैमल वो आपको हॉट डेजर्ट में, फिश कहाँ रहती हैं, अपने फ्रेश वाटर्स. जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स अडेप्ट और चेंज देमसेल्व्स टू सूट देयर हैबिट. जैसे प्लांट चेंज करता है ऐसे एनिमल्स भी चेंज करते हैं कि वो अपने हैबिटेट को क्या करें, सुटेबल रखें, सूट करें. When animals are not able to adapt to their surrounding, they either die or move to place what they are better suited to live. ठीक है, वो जहाँ उनको बेटर लगता है, जहाँ पे वो बेटर सूट करते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं. Animals can be divided into different groups depending upon their various features. कुछ फीचर्स होता है एनिमल्स के जिनके बेसिस पे हमने उनको डिवाइड करा है. First is backbone. Depending upon the presence of backbone, animals can be divided into two groups, vertebrates और invertebrates. ठीक है, हमने अगर बैकबोन की बात करें, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनकी बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनकी बैकबोन नहीं होती. Animals which have a backbone are called vertebrates. For example, cow, crocodile. Animals जिनकी बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल काउ, क्रोकोडाइल. ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, वॉर्म और स्कॉर्पियन. ठीक है, एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं हो वो क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, वॉर्म और स्कॉर्पियन, ये क्या है आपके इनवर्टिब्रेट्स. एडेप्टेशन टू द हैबिटेट. एनिमल्स आर वेल एडेप्टेड टू लिव इन देयर हैबिटेट. Depending upon the habitat in which animal live, they can be grouped as terrestrial, aquatic, arboreal, aerial. Animals that live on land and water is called amphibian. अगर हम बात करें कि एनिमल्स जो होते हैं वो वेल एडेप्टेड होते हैं अपने हैबिटेट. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट या डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट, दे आर डिवाइडेड इनटू टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एर्बोरियल, एरियल. और एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो दोनों लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. First is terrestrial animals. Animals that live on land, on the surface or below the surface of the ground are called terrestrial animals. Tiger, lions, cows, camel, giraffe and rabbit are some example of terrestrial animals. Animals जो land पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, terrestrial animal कहते हैं. For example, tiger, lion, cow, आपके camel, giraffe ये क्या है आपके terrestrial animals. Rabbit, tiger और giraffe ये क्या है आपके terrestrial animals. Next is animal in plains. Some of the adaptation shown by a terrestrial animal are as such for. ये कुछ adaptation है जो आपके terrestrial animals दिखाते हैं. First is terrestrial animals breathe through their lungs. वो अपने lungs से breathe करते हैं, जैसे human being करते हैं. Most have strong legs to walk and run. इनके strong legs होते हैं जिससे walk करते हैं और run करते हैं. They have highly developed senses such as hearing and smell. This helps them to sense the changing in the environment or protect themselves from the enemy. इनके हाईली डेवलप सेंस होते हैं. ठीक है, इनको सुनाई तक जैसे हम हियरिंग और स्मेल का. ठीक है, जो चेंज हो रहा है या उनको कैसे एनिमल से बचना है ये बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं. एनिमल्स सच एज कैमल लिव इन हॉट रीजन एंड हैव अ थिक बट लेस हेयरी स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट ऑफ सन. ठीक है, उनकी लेस हेयरी स्किन होती है, उनको किससे प्रोटेक्ट करती है, सन से प्रोटेक्ट करती है. दे ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम एंड कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मिनट. ये बहुत सारा पानी पीते हैं एक बार में और सर्वाइव करते विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज. Animals such as polar bear, penguins, walrus, yaks, Himalayan rabbits, and silver foxes that live in cold regions usually have thick fur on their skin. Polar bear, penguin, and walrus
live in freezing condition. Apart from thick fur, they also have a layer of fat under their skin. The fat keeps the body warm as used as a food in winter. जो वो होता है, आपने देखा होगा, जो फैट होता है उनकी बॉडी को वार्म रखता है और फिर जो विंटर में वो एज अ फूड वो यूज करते हैं. Some animals such as lizards, snakes and scales on their body which protect their skin from drying. Snakes do not have limbs. They use the scales under their body to crawl. स्नेक्स के लिम्स नहीं होते, वो क्रॉल का अपने लिम्स का यूज करते हैं, स्केल्स का यूज करते हैं क्रॉल करने. Some terrestrial animals such as bear, some lizard and snail hibernate. They sleep during the winter month to tide over unfavorable conditions such as scarcity of food and cold water. This winter sleep of some animal is called hibernation. जैसे bear हो गया, कुछ lizard हो गए या snails हो गए, वो hibernate करते हैं, मतलब winter sleep लेते हैं. ठीक है, winter month में वो सोते हैं और winter sleep को कहते हैं hibernation. During this time, they use the stored up food, usually as fat present in their body. वो stored up food का use करते हैं इस टाइम पे जो उनकी बॉडी पे stored होता है. ठीक है. Next is aquatic animals. Aquatic animals कौन सा animals होते हैं जो water में रहते हैं? For example, fish हो गया, whale हो गया, dolphin. ये कौन सा animals हैं आपके? Aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic animals. All aquatic animals are not found in the same type of water. Some kind of fish, snakes and snails are found in fresh water such as lake and snail. Sharks, turtles, seals, starfish and some crabs are found in salt water as seas and ocean. ठीक है, आप जैसे क्रॉल हो गए, सील्स हो गए, शार्क हो गए, टर्टल्स हो गए, आपको सॉल्ट वाटर हो जाता है और किसके? सील और ओशन. Some aquatic animals have gills to breathe in water. Fish have fins to swim in water. Some aquatic animals have limbs to switch swimming. They have webbed toes to swim in water. ठीक है, क्योंकि क्या होता है? वेब फेट होते हैं, इससे पानी में स्विम करते हैं. ठीक है, जैसे आपके फिश, क्रैब, टर्टल, व्हेल, ये क्या है आपके aquatic animal. Now amphibians, animals such as frog, toads and salamanders that live both on land and in water are called amphibians. ठीक है, जो एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, सैलमेंडर, टोड, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके एम्फीबियंस. ठीक है, फ्रॉग हो गया आपका और सैलमेंडर. दे ग्रो इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. एडल्ट फ्रॉग हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड. ठीक है, ये ग्रो करते हैं वाटर में और ब्रीथ करता है विद द हेल्प ऑफ गिल्स. और जो एडल्ट फ्रॉग है, जब वो बड़ा हो जाता है, उसके पास क्या होता है? लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए ऑन लैंड. दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर. Frogs have webbed hind feet to swim in water. Web, जो frog होता है उसके webbed hind feet होता है जिससे वो water में swim करते हैं. Amphibians like frog have strong back legs that front legs to hook which help them to move on land. इनके strong back legs होते हैं, front leg के होते हैं किसके लिए? hook करने के लिए, कूदने के लिए. Now arboreal animals, animals that spend most of their time on trees. जो एनिमल्स ज़्यादा टाइम अपना ट्री पे बिताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एर्बोरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल आपका मंकी हो गया, ठीक है, स्क्वारल हो गया, ये सारे क्या है आपके? एर्बोरियल एनिमल्स. गार्डन लिजर्ड, मंकी, स्क्वारल, ओपोसोमस आर सम एर्बोरियल एनिमल्स. देयर बॉडी आर सूटेड टू लिव ऑन ट्री. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर्म्स टू मूव फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच. इसके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और आर्म्स होते हैं से ब्रांच टू ब्रांच मूव कर. फॉर एग्जाम्पल गार्डन लिजर्ड, मंकी, स्क्वारल्स और ओपोसम्स, ये क्या है आपके? ये आपके कुछ एर्बोरियल एनिमल्स हैं. Monkey and chameleon have long tail to grip the branches. The tail also helps them to balance their body. जो उनकी टेल होती है वो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए काम आती है. A squirrel can lead up to 4 to 5 meter easily with its tail and powerful hind legs. ठीक है, 4 to 5 मीटर वो easily move कर सकते हैं with the help of his tail. Aerial animals. एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं. ठीक है, फ्लाई जैसे बर्ड्स हो गई, आपकी बैट हो गई, ये क्या है आपके? एरियल एनिमल्स. एनिमल्स विच स्पेंड अ ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ फ्लाइंग इन द एयर इज कॉल्ड एरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स आर सम एरियल एनिमल्स. दे हैव विंग एंड फ्लाइट मसल्स. दे ऑल्सो हैव होलो बोन्स विच मेक देयर लाइट एंड हेल्प देम टू फ्लाई. इनकी होलो बोन्स होती है जो क्या होते हैं? लाइट होती है और उनको फ्लाई करने में उनकी हेल्प करती है. Birds are the only mammals that can fly. They do not have true wings. Their wings are made of flap of skin. ठीक है, खाली birds ऐसा एनिमल है या मैमल है जो फ्लाई कर सकता है कि ट्रू विंग्स नहीं होते.
ठीक है, इनके विंग्स किससे बनते हैं? मेड अप ऑफ फ्लैप ऑफ स्किन. Many insect also have wings which help them to fly in the air. बहुत सी इंसेक्ट होती है जिनके विंग्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं. ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत से आपको बैट वगैरह देखेंगे वो क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. The kiwi, ostrich and penguins are birds that cannot fly. They are known as flightless birds. Kiwi हो गई, ostrich हो गया, penguin हो गई, ये भी birds हैं, but they do not fly. तो इन्हें हम क्या कहते हैं? Flightless bird कहते हैं. Adaptation on the basis of food. According to the type of food animals eat, they can be grouped as herbivores, carnivores, omnivores, scavenger and parasite. They show different adaptation. देखो अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स हैं जिनको हमने ग्रुप करा ऑन द बेसिस ऑफ द फूड, जैसे आपके कार्निवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस, हार्बिवोरस जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग, ओमनिवोरस तो दोनों चीज खाते हैं. ठीक है, प्लांट भी एंड फ्लैश. स्कैवेंजर्स क्या होता है? टू डेड एनिमल्स को खाते हैं माल. और पैरासाइट जो डेड और टिकिंग मैटर को खाते हैं. Herbivores are the plant-eating animals, for example, cow, goat, and deer. They have sharp biting teeth and strong biting teeth. They have a long, strong leg to travel a long distance in search of. Herbivores क्या होता है? Animals that eat plants. जैसे आपके cow हो गई, dog हो गई, goat हो गई, deer हो गई, ये क्या है आपके herbivores. इनके कैसे teeth होते हैं? Strong teeth होते हैं और grinding teeth होते हैं, और इनको जो ये क्या करते हैं? Walk करके जाते हैं और अपने खाने के सर्च. ठीक है, cow, goat or deer. These are the example of herbivores. Now carnivores. Carnivores are flesh-eating animals. For example, tiger, lion, eagle. They have sharp pointed teeth to tear the flesh and strong jaws to grip their prey. They have strong legs and claws which help them to run fast and catch their prey. Carnivores animals क्या होता है? Flesh-eating animals. जैसे आपका lion, tiger. ठीक है, ये क्या है? आपके flesh-eating animal है. इनके पॉइंटेड टीथ होते हैं जिससे फ्लैश को टीयर करते हैं. ठीक है, इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और क्लोव होते हैं जिनको हेल्प करता है टू फाइट देयर, टू पिक अप देयर प्रे. Lion, tiger or fox. Some carnivorous animals like eagle, owl and hawks have been eyesight to spot their prey from the skull. They have strong claws to hold their prey and sharp hooked beaks to tear the flesh. ठीक है, इनके स्ट्रॉन्ग क्लोज होता है जिससे अपने प्रे को पकड़ते हैं. जो बीक्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं जिससे वो उसका करता है? टीयर करता है. हुक्ड बीक्स होते हैं जिससे वो अपने फ्लैश को फाड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईगल, आउल और हॉक. देखो इनके होते हैं ना पॉइंटेड टीयर. ठीक है, इससे क्या होता है? इनकी जो हुक्ड बीक्स होती है इससे क्या करता है? फ्लैश को टीयर करता है. Omnivores are the animals that eat both plants and their flesh of other animals. They have teeth that are suited to eat both plants and flesh. For example, bear, dogs and crow. Omnivores क्या होते हैं? तो दोनों चीज खाते हैं, plants में या animals. For example, bear, dog और crow. ये किससे एग्जाम्पल है आपके? Omnivores. Now parasites. Parasites are the animals that get nutrition from other animals. They depend upon the host for their food. पैरासाइट क्या है? ये न्यूट्रिशन लेते हैं दूसरे एनिमल्स. ये अपने किस पे डिपेंड होता है? अपने होस्ट पे डिपेंड होता है. मॉस्किटो, टिक्स, लीचेस, हुकवर्म एंड फ्लीज आर पैरासाइट. दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट. और ये क्या करते हैं? चूसते हैं ब्लड दूसरे अपने होस्ट से. आपने कहा ना बहुतों के लीक हो जाते हैं, लीचेस से हम कहते हैं, हमारे ब्लड से. आपने देखा होगा कि बहुत एनिमल्स पे लीचेस चिपक जाते हैं, सो उनका ब्लड चूस लेते हैं. लीच, मॉस्किटो, फ्ली और हुकवर्म ये क्या है? आपके पैरासाइट्स. वर्म लाइक हुकवर्म, टेपवर्म एंड राउंडवॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल एंड टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट वर्म. बहुतों के कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से जो हम खाते हैं वो खाते हैं, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो लेते रहते हैं.